Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Today I'm here with Class 7th NCERT CBSE syllabus Transportation in Animals and Plants. Students, I have already started this chapter and taught you about the circulatory system, in which I have taught you about the blood, the different types of cells which are present in the blood vessels, as well as about the heart. Even we have discussed about the blood supply to the heart. So today in this video I am going to continue the chapter and talk about the excretory system, which will include kidneys, ureter, urinary bladder, urethra, and I am going to talk about what is dialysis. So stay tuned. And before I start my video, I request each and every one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting time, let's start the excretory system. So as I told you, the excretory system includes kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. So we are going to study about all these parts which are included in excretory system. Already we have studied how carbon dioxide is removed from our body, right? Through exhalation. When we breathe in, breathe out, when we are exhaling, we are removing the waste, that is the carbon dioxide, from the body. Also the undigested food is excreted through digestion process, right? So ये सब हमारी बॉडी के अनवांटेड मटेरियल्स हैं, राइट? वेस्ट मटेरियल्स हैं. सो सेल काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते ही बनते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं अगर ये निकाले ना जाएं. ओके, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सारे पार्ट्स हैं वो हेल्प करेंगे हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने. Okay, so these are the different parts we are going to study about in the excretory system. Starting with a pair of kidneys. What are kidneys? As you can see, kidneys, we have a pair of kidneys. Okay, दोनों साइड में, राइट लेफ्ट दोनों साइड में हमारे पास दो किडनीज है. ओके, और किडनी का काम है जो भी बॉडी में ब्लड है उसमें जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का. सो वेस्ट इन द ब्लड is to be removed. अगर वो रिमूव नहीं होता है तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है. सो ब्लड को फिल्टर किया जाता है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी. ओके, तो ये जो काम कर रहे हैं फिल्टरेशन का, कौन कर रहा है? द ब्लड कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट इन द किडनी. ओके, सो ये ब्लड कैपिलरीज काम कर रही हैं फिल्टरेशन का और ब्लड से जो भी वेस्ट है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल रही है. And the waste is filtered and removed, whereas the useful substance are absorbed back into the blood. Useful substance blood में ही रह जाते हैं, जो waste है वो filter होके निकल जाते हैं. जो harmful waste है that are dissolved in water, और वो ही हम लोग as a urine बाहर excrete करते हैं. Okay, urination करते हैं ना, टॉयलेट जाते हैं, तो via urine only these harmful waste are being removed from the body. So this you can see a pair of kidney. Yes, these are a pair of kidney. तो ये काम कर रही हैं फिल्ट्रेशन का, एक तरह का फिल्टर है ये, और ये हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का काम कर रही हैं. अभी here you can see two tubes are protruding out from the kidneys. Okay, this is the next part of the excretory system. और क्या बोलते हैं बच्चों ट्यूब्स को? इनको बोलते हैं यूरेटर्स. ओके, जैसे दो किडनीज रहती हैं वैसे ही दो यूरेटर्स इन किडनी से बाहर आते हैं और इनका काम क्या है? दे आर द ट्यूब्स विच आर कनेक्टिंग द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर. कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, किसको कनेक्ट कर रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट कर रहे हैं किडनीज से. ओके, और क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू कैरी द यूरिन विच इज फॉर्म्ड इन दी किडनी. यूरिन फॉर्म किधर हुई है? फिल्टर होके जो वेस्ट पानी में डिजोल्व हो गया है वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, लेकिन ये यूरिन फॉर्म किधर हुई है? दिस यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड इन द किडनीज, और यूरेटर का काम है इसी यूरिन को कैरी करने का यूरिनरी ब्लैडर तक. ओके, यूरिनरी ब्लैडर तक ये ट्यूब्स यूरेटर्स यूरिन को कैरी करते हैं. ओके,
Now we are going to talk about the third part, that is this bladder. Okay, so we are going to talk about urinary bladder. Urinary bladder का काम है to collect and store the urine. यूरिन मिल गई इसको कहाँ से, किडनी से आई कौन लेके आया, यूरेटर लेके आया, ठीक है। तो अभी इसका काम क्या है कि इसको इकट्ठा करना है यूरिन को, ओके, और स्टोर करना है। इससे पहले कि यूरिन हम बाहर एलिमिनेट करते हैं तो तुरंत बार बार हम लोग नहीं जाते ना, इट इज स्टोर्ड हियर, okay, so the urine is stored here, is collected here, and later it is excreted out from the body. okay, then यहाँ से भी एक छोटा सा ट्यूब बाहर निकलता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, ब्लैडर से छोटा सा ट्यूबिंग सा बाहर निकलता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, ये ब्लैडर है जहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है यूरिन। ओके, और यूरेथ्रा से ये बाहर निकलने वाला है। तो यूरेथ्रा इज नथिंग बट अ यूरिनरी ओपनिंग। हमारी बॉडी में यूरिन को बाहर निकालने की जो ओपनिंग है, दैट इज द यूरिनरी ओपनिंग, दैट इज यूरेथ्रा, and it will arise from the bladder and it is very thin tube like structure. Okay, so these are the different parts of the excretory system. I repeat one more time: a pair of kidneys, then comes out the tube called as ureter, bladder where urine is going to store and collect, and urethra is the tube, small tube that comes out from the bladder and through which the urine is being excreted out. So I hope you have understood all the parts of the excretory system and have understood about the functions of each. तो बच्चों अभी आपने देखा कि किडनी कितना important है, yes or no, for removing the waste from the blood. So if because of any disease condition, okay, if the kidney is not functioning, so there is a procedure which is called as dialysis. Okay, so this is the procedure called as dialysis. ये किसके लिए किया जाएगा? इफ द किडनी इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, ओके, ड्यू टू किडनी फेलियर, so body will accumulate all the waste, right? if the waste is not removing out, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है ना, तो वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा ब्लड में, बॉडी में कलेक्टेड रहेगा, तो ये वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा जो कि बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है, पॉइजनस है, राइट? सो इनके लिए क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का काम करवाएंगे डायलिसिस के थ्रू। ओके, डायलिसिस के थ्रू हम लोग जो पेशेंट की बॉडी में जो किडनी है फंक्शन नहीं कर रही है उसका काम करेगा ये डायलिसर। ओके, डायलिसिस, और इस प्रोसेस को बोलेंगे डायलिसिस। ओके, अभी डायलिसिस में होता है क्या बच्चों, डायलिसिस में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिमूव्ड हो जाते हैं, इन इवन बॉडी में ब्लड में जो एक्सेस फ्लूइड है दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड। सो वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड इज रिमूव्ड। ब्लड को क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है मशीन में। ओके, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे देखो फिस्चुला बनाया गया है, और इससे क्या होता है, पेशेंट का ब्लड पहले बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ओके, देन उसको डायलिसिस में पास किया जाता है, जो भी वेस्ट है वो मशीन में ही ब्लड में से जो भी वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, और डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू इसमें कुछ और इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किए जाते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है, ओके, व्हेन द ब्लड इज कमिंग एंड द वेस्ट इज रिमूव्ड, उसके साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में रहते हैं, ब्लड में रहते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं, तो एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट भेजे जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डायलिसिस फ्लूइड। ओके, और ये जो क्लीन ब्लड है, अभी जो वेस्ट है वो तो रिमूव हो गया, अभी ये जो क्लीन ब्लड है वो अगेन पेशेंट की बॉडी में भेज दिया जाता है। ओके, सो दिस इज अ प्रोसीजर, इट्स अ बिग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो मैंने आपको एकदम शॉर्ट में समझाया कि बॉडी से ब्लड आ रहा है, डायलिसिस मशीन में जा रहा है, वेस्ट रिमूव हो जा रहा है, और वेस्ट के साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिमूव हो जाते हैं, तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए डायलिसिस फ्लूइड से वो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें एडिशनल ऐड किए जाते हैं ब्लड में, और फिर वो ब्लड पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, सो ये किस लिए किया जाता है, जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर हो गया है। ओके, तो डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे आर्टिफिशियली वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है, एक्सेस फ्लूइड रिमूव किया जाता है ब्लड से, एंड ब्लड इज डाइवर्टेड टू अ मशीन, और मशीन वो काम कर रही है किडनी का, और क्लीन ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी में भेज दिया जाता है। ओके, सो दिस इज अ प्रोसीजर कॉल्ड एज डायलिसिस।
नाउ एज आई टोल्ड यू कि हमारा जो वेस्ट बन रहा है किडनी से वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एज यूरिन, राइट। सो अभी यूरिन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट यूरिन, 1 to 1.8 liters of urine we are passing in 24 hours, okay? एक दिन में हम लोग कम से कम 1 to 1.8 liters of urine प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 95% वाटर है, 2.5% यूरिया एंड other waste products is also 2.5%, okay? तो this is the composition of urine. तो most of the thing क्या है उसमें, water है, और जो waste है वो 2.5 and 2.5 other waste present है. Like us, other organisms also produce waste, right? So aquatic animals like fishes, they will excrete the cell waste in the form of ammonia, okay? किस फॉर्म में वेस्ट बाहर निकलता है एक्वाटिक एनिमल्स के, अमोनिया की फॉर्म में। अमोनिया एक गैस है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, ओके। सो यदि फिश, यू कैन सी दिस नाइट्रोजन साइकिल, सो दे आर रिलीजिंग अमोनिया एंड दिस अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट विच इज फर्दर used by the aquatic plants also. Understood? So aquatic animals क्या excrete कर रहे हैं, ammonia which is a gas, and this gas get dissolved in the water. What about the other land animals? Animals like birds, lizards, snakes, they produce a semi-solid waste, right? आप लोगों ने देखा ही होगा, right? So this semi-solid waste is nothing but the uric acid which is white color compound. Okay, this is their waste. So this is the uric acid. Understood? So different animals produces different waste, but yes, they will produce waste because cell काम कर रहे हैं. Other than this urine, हमारी बॉडी में एक और वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, and that is the sweat. Yes, पसीना आता है ना बच्चों, तो वो क्या है, वो भी एक तरीके का वेस्ट है. तो ये जो स्वेट आ रहा है उसका क्या यूजेस है, वेस्ट तो निकल ही रहा है बॉडी से. अदर देन दैट इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग दी बॉडी टेम्परेचर, ओके. पसीना आता है तो क्या होता है, पसीना जब सूखता है, इवेपोरेट होता है, तो क्या हो जाता है बच्चों, कूल फील होता है ना. अब पसीने में आए हो, पंखे के नीचे बैठ जाओ तो ठंडा लगता है, क्यों, बिकॉज दिस स्वेट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग. व्हेन दिस स्वेट इवेपोरेट, there is a cooling effect, okay, and that's the reason why we feel cool. So body temperature को maintain रखने के लिए, control रखने के लिए sweating is very important, okay. Also it gives grip to the palms, okay. कुछ भी hold करते हैं तो हमारे हाथों में भी पसीना है ना, तो उसकी वजह से एक अच्छा grip मिलता है. So ये sweat में होता क्या है, sweat is not just water but वाटर के साथ में सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है, ओके. आपने कभी देखा होगा कोई ब्लैक शर्ट या डार्क कलर का कपड़ा आपने पहना है, ओके, और बहुत पसीना आया है उसमें, सूखने के बाद यू कैन सी व्हाइट पैचेस, राइट, यू कैन सी व्हाइट पैचेस. दिस व्हाइट पैचेस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन दी स्वेट, ओके. तो स्वेट में सिर्फ पानी नहीं आ रहा है, पानी के साथ में क्या है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है. 99% वाटर है और 0.2 से 0.5% उसमें सॉल्ट्स है, दैट इज दी NaCl. एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज अ वेस्ट, तो डेफिनेटली इसमें वेस्ट तो है, क्या है, 0.08% यूरिया. यूरिया इज वेस्ट ना. सो ये पूरा कंपोजिशन हमारा स्वेट का है. अंडरस्टूड? सो एज आई टोल्ड यू हाउ स्वेटिंग इज मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. कैसे, पसीना आ रहा है तो क्या हुआ है, इवेपोरेशन हो रहा है, और उस इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट हो रहा है. तो इसी फिनोमिनन की वजह से हम एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज दी कूलिंग इफेक्ट इन दी मड पॉट, ओके. जो ये अर्दन पॉट है ना बच्चों, उसमें हम पानी रखते हैं तो कैसा रहता है, ठंडा रहता है, इवन इन दी समर डेज. ऐसा क्यों होता है, सो जस्ट बिकॉज दिस मड पॉट हैव टाइनी होल्स इन दिस, ओके. सो इसमें से क्या होता है, पानी बाहर रहता है जो वो इवेपोरेट होता रहता है, ओके. एंड बिकॉज इस इवेपोरेशन का कौन सा इफेक्ट अभी हमने पढ़ा, कूलिंग इफेक्ट, यस और नो. दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. ये क्या लूज करता है अपना, लेटेंट हीट भी बोल सकते हैं इसको. इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, और उसमें रखा हुआ पानी कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा. लेकिन इफ यू कंपेयर दिस टू अ स्टील पॉट, स्टील पॉट में ऐसा कुछ भी ओपनिंग्स नहीं है, टाइनिंग होल्स नहीं है जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट हो सके. सो देयर इज नो कूलिंग इफेक्ट इन स्टील. लेकिन गर्मियों में भी अगर हम मड के पानी पॉट में
अर्दन पॉट में पानी रखेंगे तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस टाइनी होल्स द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड and the water inside the pot remains cool. Okay, so this is also called as the one of the effect of latent heat. So I hope you have understood. अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको समझ में आया होगा. Let's quickly revise. Today I have taught you about the excretory system, the different parts of the excretory system like kidneys, ureter, urinary bladder and the urethra. मैंने एक्सप्लेन किया हर एक का फंक्शन कि क्या क्या काम करते हैं. देन अगर जिन पेशेंट्स में ये काम नहीं कर रही है किडनी, तो हम क्या करवाते हैं उन पेशेंट का एक प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस. ओके, जिसमें हम लोग एक बाहर से आर्टिफिशियल किडनी का काम करवाते हैं डायलिसर से. ओके, एक डायलिसर से आर्टिफिशियल किडनी का काम करवा रहे हैं जो कि बॉडी के बाहर ब्लड को फिल्टर करके इम्प्योरिटीज निकाल के अच्छा ब्लड जो कि वेस्ट से फ्री हो चुका है, वेस्ट निकल चुका है, वो ब्लड हम वापस पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. सो दिस ऑल वी हैव स्टडीड. वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द स्वेट एंड द डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep studying, keep revising, and if you have any doubt, feel free to comment below. And before I leave, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. It's me signing off. Bye bye. Thank you for watching.